Okay, okay, okay. Okay. Now, we are here for a very very important reason. I said earlier. अब मैं पहले बता देती हूँ. I am Shweta and many of you people know me. जिनको नहीं पता है, I am Shweta. I am the admin, or you may say the founder of K Plus. And today we have gathered here. We have gathered here for a very very important reason. That is presentation skills. The answer presentation skills. We are going to discuss about that. Now, many of the students, they prepare properly, they go to their exam halls, they sit, they write the paper, but they don't get the marks, or they get the marks which is not according to them sufficient or accurate. Why is it so? मैम मैंने तो पूरा पूरा आंसर लिखा था, मैम मैंने तो सही से लिखा था, मैम मैंने तो लंबे लंबे आंसर्स लिखे थे, still I didn't get the marks. Why is it so? So we are going to discuss here a few answer presentation hacks. Now the students who study properly, who prepare themselves, पूरे साल वो पढ़ाई करते हैं, but कुछ कमी के वजह से कहीं ना कहीं they fail to succeed or they fail to gain that much amount of marks जो बाकी बच्चों को मिल जाता है कहीं ना कहीं, and कहीं ना कहीं उनको अंदर लगता है कि मेरे अंदर कहाँ कमी रह गई. I prepared but I didn't get the marks. Why is it so? Now, if you are a student and you are preparing yourself pure saal tak, and then you get a touch up of presentation, then you'll be the successful student and you'll be as happy as possible, like in the PDF you can see. Now, let me tell this and let me clear this myth anyways. This 100% which you can see in the presentation is not the 100 marks which you get. The full marks is equal to 100. It's not equivalent to that. It's about 80% of the answers which you attempt, be it of 60 marks also. अगर आप पेपर में कितने का भी x amount of marks जो भी आप attempt करते हो, उसका 20%, okay, उसका 20% प्रेजेंटेशन के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है. दैट इज आप n नंबर ऑफ मार्क्स अटेम्प्ट करो अपने पेपर्स में, चाहे वो 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, डजंट मैटर. उतने मार्क्स का 20% इज clear cut dependent on your answer presentation skills. And I'm not kidding, yeah, it's true. Whatever you attempt, uska 20% is accurately described or is admitted to your answer. 20% is on your presentation skills. Now look, I don't want to bifurcate, and I really am not that sort of teacher or anything, but I want to say there are three categories of students. The first one being toppers. ये दिमाग में mentality है लोगों की, but हाँ, it's true, toppers. The average one and the below average one. अब देखो, every student is not the same. ये उनके ग्रास्पिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट कैसा है. वो क्या एक टॉपर कैटेगरी में आता है, क्या वो एक एवरेज कैटेगरी में आता है, या वो एक बिलो एवरेज कैटेगरी में आता है. इट्स ओनली डिपेंडेंट ऑन द मार्क्स, जिसकी वजह से ये तीन बाइफर्केशन मैंने किया है. नॉलेज का यहाँ पे कोई सवाल नहीं आता है. डोंट मिसकंसेप्ट योर सेल्फ विथ नॉलेज एंड इंटेलिजेंस एंड द वन मोर थिंग विच इज मार्क्स. तीनों ही अपने अलग अलग क्राइटेरिया में, तीनों को मिक्स मत करना. Now, why do you think there's a difference? Why do you people think there's a difference between topper, average, and below average students? What is the difference? Anyone? Anyone can type or just can say me? Where is the difference, or where does the difference lies? Anyone? Any of one of you can just type it up. No one? Okay, chalo. Let me make it more easier. Do you think there's a difference between students? Just type yes or no. YES or NO, no. Just type it that. YES, no. There's no difference. Okay. There's no difference. Quick, quick. I'll count till 10. 1, 2. Yes, 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 yes. No, no, no. Yes, yes. Okay, okay, okay.
Fine. So many people think that yes, there is a difference, and many things there's no difference. Fine. I'll just make this concept very clear today. Fine. The key to success is hard work. Question mark. Really, is it so? Now देखो, अब हम हड़प्पा मोहनजोदारो civilization से बहुत आगे आ चुके हैं, and the key to success is not hard work. No dear, it's not. And trust me, there's no difference between the people who are toppers or who are average students or who are below average students. Only and only there is a difference in the perspective of their studies. How they see studies, how the toppers see the studies or the pattern or the perspective they grasp, the others don't. ना देखो कोई डिफरेंस तो है नहीं, बचपन से एक सुनते आ रहे हैं ना घर पे कि वो क्या कौन से आटे का चक्की का आटा खाता है, तुम कौन से चक्की के आटा खाते हो, कि वो 90% ले आए एंड तुम 70s में अटके हुए हो. दिस इज द बेसिक थिंग इंडियन पेरेंट्स से, राइट? So the key to success is hard work. It is totally myth. अब ये बहुत बड़ा झूठ हो गया, not really, because if you want to, the art के ऊपर जो एक red spot है, if you want to achieve that, you need to do both the things. दोनों भी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा और हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा. जो लोग सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं वो कहीं ना कहीं नीचे रह जाते हैं, जो स्मार्ट वर्क करते हैं वो थोड़े ऊपर रहते हैं, पर जो दोनों करते हैं, जो लक के ऊपर बिलीव नहीं करते, एग्जाम में कोई आपको बोले ना क्या बताओ बेस्ट ऑफ लक, पहले बोल देना भाई ऑल द बेस्ट बोलो, बेस्ट ऑफ लक तो बोलो मत, लक कुछ भी नहीं है यहाँ, लक कुछ है ही नहीं यहाँ पे. इट्स ऑल अपॉन आपने कितना मेहनत किया. अगर आप पूरे साल मेहनत किए हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके पेपर में आपको कुछ आए ना या आप कुछ लिख ना पाओ. आई एम हियर टू एड अप, आई एम हियर टू पॉलिश योर स्किल्स, नॉट टू से कि पढ़ के मत जाना एंड प्रेजेंटेशन लिख करके आना. कैलीग्राफी की कॉम्पिटिशन थोड़ी है. You're gonna study and then you're gonna achieve marks, right? यानी स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों ही आपको करना पड़ेगा. स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क दोनों में डिफरेंस है, क्या है बताओ? एनीवन? Just learning, mugging up and going to examination hall is hard work. पूरे दिन भर आप पढ़ाई कर रहे हो, that is hard work. What is smart work? आप बैठ करके रिविजन कर रहे हो, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसको आप टाइम टू टाइम रिवाइज कर रहे हो. वरना जो 6 घंटे आपको लगे थे एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, आपने उसको पूरे तरीके से छोड़ दिया और एग्जाम के पहले आप उसको लेकर के फिर से बैठोगे तो आपको और 12 घंटा लग जाएगा और आप एक ही चैप्टर में अटके रह जाओगे. दैट मीन्स यू रियली नीड टू फोकस, रिवाइज करते रहना पड़ेगा आपको. कोई भी चीज, कोई भी गाना एक बार में याद थोड़ी होता है. आप उस गाने को सुनते रहते हो, आपके प्लेलिस्ट में वो बजते रहता है, चाहे वो यूट्यूब पे हो या गाना पे हो, एनीवेयर यू लिसन टू दैट सॉन्ग कंटिन्यूसली, तभी आपकी जुबान पे ऐसे वो गाना चलता है. जनरली नहीं चलता है, राइट? दैट मीन्स यू रियली नीड टू रिवाइज थिंग्स अप, मेक रनिंग नोट्स, टीच योर सेल्फ, बी अ टीचर. मैं ये नहीं बोल रही हूँ टीचर जाके पढ़ाने लगो, बी योरसेल्फ. आप खुद को पढ़ाओ, आप खुद को बोलो देख यार ऐसा है ऐसा है ऐसा है, एंड ट्राई टू एक्सप्लेन योरसेल्फ. दीज आर द लिटिल थिंग्स व्हिच मेक योर स्टडीज पॉलिशिंग. एंड ट्रस्ट मी, जब आप खुद को समझाते हो एंड यू ट्राई टू टीच योरसेल्फ, आपको एक एक कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर होते जाता है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ आता है. Yeah, the ancient saying that 5 fingers are brothers but not equals. इसका मतलब क्या है? 5 उंगली समान नहीं होती है, ये हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. यानी कि हम सब इक्वल मार्क्स जरूरी नहीं है लेकर के आए. कोई बहुत ही ज्यादा पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई का किसी और चीज में इंटरेस्ट हो, किसी और चीज में स्किल्स हो, चाहे डांसिंग में हो, एक्टिंग में हो, सिंगिंग में हो, एनीथिंग, राइट? एनी सिंगल थिंग. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लास 12 तक पढ़ाई नहीं करोगे एंड यूल से कि नहीं क्लास 3 में मेरे को तो एक्टिंग में ये है, आई विल गो देयर. नो, यू कांट डू दैट. अब तुम लोग मुझे 4-5 एग्जांपल्स दोगे कि इसको देखो इसको देखो, सो देखो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कुछ बिल्कुल होते हैं, बट हर टाइम वहां पे लक साथ देता है ना, पढ़ाई पे लक साथ नहीं देता है. आपको तो अपना पार्ट क्लियर करके चलना पड़ेगा ना. आप अपना पार्ट तो क्लियर रखो, उसके बाद लक का देखा जाएगा. एटलीस्ट इतना तो अपना तो 100% दो. अगर अपना भी 100% नहीं दोगे एंड बोलोगे नहीं नहीं विल डू इट, कैसे होगा? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? यू रियली नीड टू गिव योर 100%. यानी कि स्मार्ट वर्क तो करो. ओके, so what is smart work? Now there's a question, what is smart work? मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया, बट रियली क्या है एक्चुअली? सी,
So, सबसे पहली चीज है टाइम मैनेजमेंट. यस, इट इज टाइम मैनेजमेंट. अब जो मैं बताऊंगी वो एक फिड्यूशरी कैरेक्टर है या फिड्यूशरी टाइम लिमिट नंबर्स लिए मैंने, प्लीज इसको मिस इंटरप्रेट मत करना. आपको 2 घंटे के एग्जाम में यानी कि 120 मिनट्स टोटल होते हैं. ओके, मार्क्स मान लो 100 है. अगर आप डिवाइड करोगे तो रफली 1.2 मिनट एक मार्क के लिए बनता है आपका. ओके, यानी आप एक मार्क के लिए 1.2 मिनट स्पेंड कर सकते हो. अब यही सोच के देखो, आपको आया है पेपर, आपके क्वेश्चन में है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, मान लो 10, एंड वो सारे क्वेश्चंस में से कम 8 क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं. अब आप लगे कैलीग्राफी करने वहां पे. ओके, उस 2 मार्क के लिए आपने लिखना शुरू कर दिया 2-2, 4-4, 5-5 मिनट. आपको लगता है कहीं से भी वो वर्थ है आपके टाइम का? अब देखो, बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं ना जहाँ पे क्विकली वो हो जाता है, 1 मिनट भी नहीं लगता, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको 6-6, 7-7 मिनट लगता है. यानी आपको ये पेस स्पीड बोलते हैं ना, क्रिकेट में होता है ना एक रेट मेंटेन करना है, वैसे आपको एक रेट मेंटेन करके रखना है 1.2 मिनट्स का. अकॉर्डिंग टू माई फिगर आपका एग्जाम और आपके मार्क्स अलग हो सकते हैं, आपका कैलकुलेशन अलग हो सकता है. सो दिस इज द बेसिक कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू मी कि आपको एक रेट मेंटेन करना है अपने एग्जाम हॉल में. टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पूरे साल आपने पढ़ाई की है, पूरे साल आपने शिद्दत से पढ़ाई की है, पर दो एग्जाम डे के दिन, राइट, दो एग्जाम डे के दिन आप अगर गड़बड़ कर देते हो बच्चा, तो वो हो जाएगा गड़बड़, राइट. तो टाइम मैनेजमेंट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The second thing, being consistency is the key. While you're writing the paper, while you're studying the whole year, being consistent is the key to success every time, right? Hard work, smart work, सब कुछ ठीक है, but being consistent is what everything is. Now see, this is a basic instance. ठीक है, मैं बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ. स्टूडेंट्स को पेपर आया, आपको पेपर मिला, आप लिखना स्टार्ट किए अपने नाम, अपना रोल नंबर, इंडेक्स नंबर, जो भी आपका, एवरीथिंग, यूनिक आईडी, व्हाटएवर, ओएमआर शीट आपने भर दिया अगर आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हो तो. एंड आपने ऐसा लिखना शुरू किया. यू हैव स्टार्टेड राइटिंग लाइक दिस ब्यूटिफुली, बहुत ही सुंदर से. जैसे ही कुछ घंटे बीतते हैं या कुछ मिनट्स बीतते हैं, आपको पता है कि और आधा घंटा बचा, और आपको पता है कि आपका पेपर इतना ज्यादा बचा है, आपका हैंडराइटिंग कुछ इस तरीके का हो जाएगा. और जब मैम या सर व्हाटएवर आपसे आएंगे पेपर्स लेने, उसके बाद आप 2 मिनट में भगवान जाने क्या लिख लोगे. राइट, दिस इज द थिंग. आई होप एवरीबॉडी, सबके क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं. इनफैक्ट बच्चों ने भी ऐसा हरकत किया हुआ है. सो हाँ, आप रिलेट कर सकते हो इस चीज से, राइट. Now, this is a very very important step which I'm gonna tell you, and it's the mantra of being success. Trust me. आपका पेपर, ठीक है, 100%, समझ लो पूरा पेपर मैं 100% ले रही हूँ. ओके, उस 100% में जो डार्क ब्लू कलर आपको दिख रहा है ना, दैट इज 70%. उसके ऊपर फोकस करो. व्हाट इज इट? हर एक पेपर 3 कैटेगरी में बटा हुआ होता है. द फर्स्ट वन बीइंग नोन कैटेगरी, द सेकंड वन बीइंग ट्रिकी कैटेगरी, एंड द थर्ड वन बीइंग अननोन कैटेगरी. यानी कि आपका पूरा का पूरा पेपर 3 कैटेगरीज में बटा है. सबसे पहला ऐसा चीज, यानी कि जो बच्चे को पता है, नोन कैटेगरी, जो आपको ऑलरेडी आता है, आपने उसके बारे में सुन रखा है, आपको वो याद है, आपको वो अच्छे से आता है. उसके बाद का जो आपको उससे मीडियम ब्लू दिख रहा है, दैट इज ट्रिकी कैटेगरी. ट्रिकी कैटेगरी का मतलब क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन जो आपको आते हैं बट कहीं ना कहीं आपको वो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उसमें, आपको समझ नहीं आ रहा है, शुड आई राइट लाइक दिस और दैट, या वैसा आंसर होगा, ऐसा आंसर होगा, वैसे कैटेगरी का. और जो स्काई ब्लू कैटेगरी है विच इज अननोन, आपको आता ही नहीं, आपने सुना ही नहीं है. दिस इज अ वेरी जनरल एंड एवरेज एग्जाम्पल आई एम टेकिंग. सो 70% ऑफ द आंसर्स यू पीपल नो, एंड बाकी का 30% आपको कंफ्यूजन है या तो आपको आता नहीं है. सो व्हाई टू फोकस ऑन दैट 30%? फोकस ऑन द बिगर पार्ट. Focus on the 70%. Focus on the part you know, you're confident about, and write it down. It's not important कि आप 100 का 100 मार्क्स अटेम्प्ट करके आओ. टीचर्स बोलते हैं कि आपको अटेम्प्ट करना चाहिए. यू शुड अटेम्प्ट, ट्रस्ट मी, यू शुड अटेम्प्ट. वेदर यू नो और डोंट नो डजंट मैटर. बट there is one big and very big condition. The condition is, पहले
उन चीजों को अटेम्प्ट कर लो आप जो आपको बहुत अच्छे से आता है, आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जिसके बारे में। उसके बाद उन फेज में जाओ जो आपको थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता है, आपको अब ऑथर बनना पड़ेगा, अपने अंदर का शेक्सपियर बाहर निकालना है, एंड फिर आप लिखोगे। एंड फिर वहां पे जाओ जो आपको थोड़ा बहुत इधर उधर से देख के या फिर पूछ पाछ के जो भी आपको लिखना है। एनीवेज, आई एम नॉट प्रमोटिंग चीटिंग now. The fourth point being markings, which is mandatory. Now what is markings? Marking is जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट राइट कि आप क्वेश्चन 6 पहले नहीं लिख सकते हो। इट्स ओके इफ यू राइट क्वेश्चन 6 पहले, क्वेश्चन 1 2 3 4 बाद में, इट्स ओके क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो उसके बारे में, सो यू वांटेड टू अटेम्प्ट फर्स्ट, इट्स completely okay, you can do that. There's only one condition there, you really need to maintain the question numbers, the sequences and everything very sharply and promptly. And किसी भी बोर्ड में, चाहे आप ICSE हो, CBSE, West Bengal State Board, किसी भी बोर्ड, college, anything, intermediate of any professional course, anything, right? You can write this thing, but you really need to maintain and label your questions properly and start with, कोने में लिखते हैं ना ANS, फिर एक एरो देकर के आंसर लिखते हैं, अब वो हाथ जोड़ी हूँ भूल जाओ, वो तरीका भूल जाओ. दिस इज रियली वेरी अनप्रोफेशनल. यू शुड राइट एकदम सेंटर ऑफ द पेज में या सेंटर ऑफ द लाइन पे, आंसर टू क्वेश्चन नंबर एक्स, आंसर टू क्वेश्चन नंबर वाई, आंसर टू क्वेश्चन नंबर वट एवर. ठीक है, एंड देन स्टार्ट योर आंसर एंड देन फिनिश इट. दैट्स द रूल. Now you should follow FIFO method. Now what is FIFO method? FIFO method is first in, first out. जो दिमाग में सबसे पहले आ रहा है आंसर, उसको सबसे पहले निकालो. जो भी आंसर आपको सबसे अच्छे से आ रहा है या सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो आप उसमें, या फिर आपके दिमाग में वो सबसे पहले आया है, राइट इट डाउन, खत्म करो उस चीज को. आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर कभी सॉल्व करो, वहां पे आपको ऐसे मिलता है. ओके, आपको जब ऐसे मिलता है ना, व्हाट यू थिंक कि यार ऐसे को लास्ट में लिखेंगे या ऐसे को पहले लिखेंगे, वट एवर. ओके, फर्स्ट थिंग व्हाइल यू राइट एन essay इज टेक द पेपर, टेक द पेंसिल, जो भी टॉपिक आपने डिसाइड किया है दिमाग में सोचो, राइट द पॉइंट्स, ऐसे जस्ट बुलेट पॉइंट्स लिख लो कि आपको क्या दिमाग में आ रहा है. उसके बाद उसको आप समराइज करते रहना. आपको 15 मिनट लगेगा इसे लिखने में, 15 मिनट्स यू विल टेक. ओके, सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इज दैट आपको जो भी दिमाग में आ रहा है पेंसिल से कहीं लिखते जाओ, लिखते जाओ, आंसर शीट में लिखते जाओ. इट्स ओके, एक कॉलम खींच दो, रफ वर्क बोल के लिखते जाओ. टीचर मना करते क्वेश्चन पेपर्स पे लिखने, एंड इट्स वेरी ऑब्वियस, आपको नहीं भी लिखना चाहिए. आप आंसर शीट पे लिखो, लिखो ना आराम से, बाद में क्या दिक्कत है, एक स्ट्राइक कर देना वहाँ पे, रफ वर्क बोल के दिखा देना, आपको कोई जज नहीं करेगा उसके ऊपर. आराम से लिखो, बट जो भी याद आ रहा है लिख लो. ऐसा नहीं शिट यार उस टाइम तो यार तभी मैं भूल गया. सो राइट थिंग्स अप इफ यू फॉरगेट. Keywords are must. Now everyone listen to me very carefully. Keywords are must. क्यों मैं बता रही हूँ ये, आपको आंसर्स आपके लेंथ के ऊपर नहीं मिलता, बीच में गाना मत लिख के आ जाना. You really need to write the keywords. आज के टाइम पे ठीक है, इंडियन टीचर्स जो हैं, या फिर इंडियन टीचर्स क्या, कोई भी टीचर्स इंडिया में अभी भी आपके साइंटिफिक तरीके से या कंप्यूटराइज तरीके से सिर्फ एक पेपर चेक होता है, उसको बोलते हैं OMR शीट पेपर, जहाँ पे आप गोले भरते हो ना, गोल गोल बलून जैसे, वही बस कंप्यूटराइज होता है. बाकी सारे के सारे पेपर्स जो हैंड रिटन होते हैं अभी के टाइम पे भी, वो ह्यूमंस चेक करते हैं, यानी टीचर्स चेक करते हैं. एंड ह्यूमंस, उनका जजमेंट वैरी करता है, वो भी थकते हैं, उनको भी गुस्सा आता है. सो आप शुरू कर रहे हो किसी भी चीज से, ओके, एंड यू आर राइटिंग लाइक दिस, यू आर राइटिंग द कीवर्ड्स. टीचर्स को दिक्कत ही नहीं हो रहा है कुछ पढ़ने में, टीचर्स को साफ साफ आंसर दिख रहा है, उसमें साफ साफ हाईलाइटेड पॉइंट्स दिख रहे हैं, है ना, कीवर्ड्स दिख रहे हैं उनको, और कीवर्ड्स को आपने अंडरलाइन कर रखा है, उनको सीधा आंख पे वही आंसर्स दिख रहा है. कैसा लगेगा उनको? बी अ टीचर, एक बार के लिए सोच के देखो दैट या आई एम अ टीचर, एंड आपका स्टूडेंट आपके लिए एकदम ईज करके लाया है सब कुछ सामने, साफ साफ क्लियर. देखो ये पेपर एक मैंने आपके लिए सामने में लेकर के आया है, ये एक साइंस का पेपर का एक जस्ट एक डेमो है. यहाँ पे इवेंचुअली आपको सब कुछ दिख रहा है कि हाँ, यू नो व्हाट इज द हेडिंग, व्हाट इज द सब हेडिंग एंड द मेन पॉइंट. मेन पॉइंट में आप साफ साफ अगर अंडरलाइन करो, कीवर्ड्स दिख रहे हैं, तो आपको मार्क्स क्यों नहीं मिलेगा भाई? कोई आपसे दुश्मनी थोड़ी है किसी की. बुलेट्स ऑलवेज टाइम सेव करता है, हमेशा बुलेट पॉइंट्स टाइम सेव करता है ना. दो आपको सामने बॉक्सेस दिख रहे हैं,
which one you can read very easily? Obviously bullet side वाला आपको बहुत easily दिख रहा है, बहुत easily समझ भी आ रहा है. Why? What's the reason? Because वहाँ पे space maintained है, key points आपको साफ साफ दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ आपको लिखनी नहीं पड़ती है, point to point लिखते हो खत्म हो जाता है. पढ़ने वाले के लिए भी ease है और लिखने वाले के लिए भी. But there's an exception every. पैराग्राफ स्टाइल आपको ऑप्ट करना पड़ेगा इफ यू बीइंग द राइटर नॉट क्लियर. आपको क्लियर ही नहीं है आप क्या लिख रहे हो, आपको पता ही नहीं आप क्या लिख रहे हो, या फिर यू वेरी मच कंफ्यूज्ड विद द आंसर, यू नीड टू राइट इन द पैराग्राफ फॉर्म ताकि आपको कुछ एवरेज मार्क्स तो मिल ही जाए. दिस इज द ट्रिक बोल सकते हो, दिस इज द हैक आप बोल सकते हो. बुलेट पॉइंट में तब लिखो व्हेन यू आर वेरी मच क्लियर टू सेव द टाइम, एंड पैराग्राफ स्टाइल तभी लिखो जो आंसर आपको आता है या थोड़ा बहुत नहीं आता है, एकदम 60-40 का रेशियो आपको नहीं आता वाला, तो आप पैराग्राफ में खिचड़ी पका सकते हो. हाँ, आपको एवरेज मार्क्स मिलेगा, बट दैट्स बेटर ना. बुलेट में लिखोगे तो टीचर को तो पता चल जाएगा आपको नहीं आता. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डिफरेंस बिटवीन आप चाहे क्लास 6 में हो, 5 में हो, 10 में हो, 12 में हो, कॉलेज में हो, प्रोफेशनल कोर्सेज में हो, LLB, MBA, कुछ भी, एनीथिंग यू आर डूइंग, एनी सिंगल थिंग यू आर डूइंग, बी इट एनीथिंग, ओके, डिफरेंस आता है और हमेशा आता रहेगा. डिफरेंस जब भी आए तो आप क्या करते हो, बचपन से क्या सीखा है, दो ऐसे लाइन खींचना है, बीच में एक लाइन खींचना है, एक तरफ यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे, लिख दिया डिफरेंस, खत्म कहानी. नो नो नो, अ बिग नो, यू कांट डू लाइक दिस. आपको एक बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन देना बहुत जरूरी है. यू कैन सी द पॉइंट्स इन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड, यू कैन सी ना स्कोर, रिप्रेजेंट, टारगेट, फॉर्मेट, रिस्पॉन्सेज जो लिखा हुआ है. दैट इज व्हाट बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, जिसके बेसिस पे आपने दोनों भी डिफरेंस को एक्सप्लेन कर रखा है, विच विल बी ईजियर फॉर एवरीवन. यू, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, एंड फॉर द टीचर ऑल्सो इट विल बी ईजी कि बच्चे को क्या समझ आए. ओके, मेंटेन स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स. देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, बट वो लोग बहुत ही ज्यादा चिपका चिपका के लिखते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, एंड आई एम लाइक वेरी मच शॉक्ड कि ऐसे बड़े बच्चे भी करते हैं. बिल्कुल करते हैं, उनकी आदत होती है. तो अगर आप वो नहीं कर सकते, आप वर्ड्स को स्पेस दे करके नहीं लिख सकते, तो आप लाइंस छोड़ के लिख दो. ओके, इट्स ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. लाइंस छोड़ के लिखोगे तो कोई आपको मार नहीं डालेगा, बट जो भी लिखो क्लियर लिखो, नीट लिखो, ऐसा कि आंखों को वो चोट ना पहुंचाए. ओके, margins can be magical for you. M for margin, M for magic, it can be. So after every answer, to avoid confusion, draw a line. Now लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, 2 घंटे के एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है बच्चों के पास कि वो हर एक आंसर के बाद लाइन खींचे. सो माई सजेशन, और जो मैं करती थी, आई यूज टू लीव अ लाइन बिटवीन 2 आंसर्स, ताकि बाद में इफ आई गेट अ टाइम वाइल रिवाइजिंग माई पेपर, आई कैन जस्ट ड्रॉ इट अप. मैंने आपको एक एवरेज मार्क्स कैलकुलेशन टाइम बता रखा है वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में, विच वॉज 1.2 मिनट पर मार्क्स. कोशिश करो 1 मिनट में 1 मार्क को निपटाने का. अगर वो 5 मार्क का आंसर है, ट्राई टू कीप 5 to 6 मिनट्स उस आंसर के ऊपर, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं देना है आपको, राइट. सो ट्राई टू सेव थोड़ा टाइम, ताकि एंड तक आप कम से कम 6 से 7 मिनट या 10 मिनट हाथ में लेकर के अपना पेपर अच्छे से रिवाइज कर सकते हो. बिकॉज हड़बड़ी में आपने क्या लिखा है वो आप एक बार रीचेक करोगे तो आपकी आंखों को दिख जाएगा. एंड अगर आपने अंडरलाइन एंड ये सारी चीजें कर रखी है तब तो आपको बिल्कुल ही दिखेगा, राइट. तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आप वर्टिकली मार्जिन खींचो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे खींचते हैं, बट यू शुड you know but you should keep it on the right hand side also. Fine, if the meeting ends, guys, please rejoin it. Okay, I hope 10 minute mein it will be over, but if not, please rejoin the same link. If there is a shortage of time, try leaving a line after the answers, which I said earlier. Always start with the second line to maintain the neatness. कभी भी पेज के फर्स्ट लाइन से आपको एक रेड मार्जिन होता है, उसके बाद एक लाइन होता है, सो कभी भी वहां से स्टार्ट नहीं करना. ट्राई टू start from the second line, and always try to stick to the left part. आप लेफ्ट पार्ट को एकदम एक मार्जिन जो आपने मेंटेन किया ना, उसी मार्जिन से लिखना शुरू करो. बहुत सारे लोग ऐसे लिखेंगे, फिर थोड़ा सा उधर चले जाएंगे, फिर और उधर चले जाएंगे. Just avoid that thing. Okay, try to write एक line straight.
switching pens, total mess. This is a very very important thing. बच्चे करते हैं ये. आपको आंसर पेपर को डेकोरेट नहीं करना है, राइट? आपको उसमें अपना नॉलेज, अपने स्किल्स दिखाने हैं, ना कि आपको उसमें बैठ करके कैलीग्राफी करना है. सो इट्स अ बिग 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 नो, बिकॉज टाइम किल कर रहे हो आप अपना by decorating the paper. So avoid two inks or anything. If you're writing with blue, stick to blue. If you're writing to black with black, stick to black. Diagrams and charts can be add-ons with your marks. आपके marks enhance हो सकते हैं, improve हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं if you are doing this. आप किसी भी आंसर जो भी आपको लगे इफ रिक्वायर्ड, वहां पे अगर पॉसिबल है तो आप डायग्राम्स बनाओ, आप फ्लो चार्ट्स बनाओ. इससे एग्जामिनर के आंखों को वो प्लीज करता है एंड यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स ऑब्वियसली. So there are 3 steps. The first one being diagram chart. अगर हो सकता है बनाओ, और अगर बना रहे हो तो प्लीज उसको लेबल करो. People forget to label it and it's very 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 bad. So label it properly. And the last one being proper explanation. If you're writing, if you're making a chart or diagram, if you're labeling it, please explain it properly. Reference to the origin can fetch you marks. इसका मतलब क्या है? If suppose you're writing maths का कोई sum you're solving, okay, and you just started solving, आपको पता है वो फॉर्मूला से डिराइव होकर के आप आंसर निकाल रहे हो. सो सबसे पहला चीज आपको शुरू से बचपन से सिखाया जाता है, राइट द फॉर्मूला देन सॉल्व. Write the formula then solve. Same goes with economics, same goes in science also, same goes in commerce case studies. If you're doing, write the origin, write the thing from where you adopted. Again, if you're writing a definition of a professor, or if you're writing something related to a professor, या किसी के quoted words के according आप कुछ लिख रहे हो, so अगर आपको वो quoted words याद नहीं है, write the name of the professor. Or if you are not even clear about that, राइट कि आपने कहीं से उसको अडॉप्ट किया एंड देन यू आर राइटिंग. इससे पता चलेगा एग्जामिनर को दैट यस यू स्टडी. तो आप एकदम सीक्वेंस में करो. सबसे पहले ओरिजिन, जहां से भी आपने उस चीज को उठाया उसके बारे में मेंशन करो. देन राइट योर कोर आंसर एंड देन एट द एंड विद द कंक्लूजन ऑफ योर आंसर. स्ट्राइकिंग वर्ड्स आर प्रोहिबिटेड. स्ट्राइकिंग वर्ड्स आर प्रोहिबिटेड का मतलब क्या है? एक वर्ड आपने लिखा, आपने उसको ऐसे काट दिया, है ना, ऐसे खिचड़ी बना दिया, आपने उसी वर्ड के ऊपर ओवरराइट कर दिया, या ऐसा कुछ लिखा है आपने काट कूट के कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, अल्फाबेट एफ एस लग रहा है, जेड वाई लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है. सो दीज थिंग्स कैन बी अ नेगेटिव marking impact on your paper. So just avoid these things. Don't be a content writer. Please अपना शेक्सपियर अंदर का बर्नर्ड शॉ एग्जाम हॉल में मत निकाला करो आप लोग. बी इट इंग्लिश, कॉमर्स, मैथ्स, एनी पेपर, एनी सिंगल पेपर. वहां पे बैठ करके ऑथर मत बनो कि चलो आज कुछ इतिहास बनाते हैं. नहीं, नो नो नो, यू कांट डू दैट. यू रियली कांट डू दैट. ओके, यू रियली डोंट नीड टू बी अ कंटेंट राइटर इन योर एग्जाम हॉल. ये क्यों होता है? ये होता है क्योंकि आपने पहले से उन आंसर्स को रिटन प्रैक्टिस किया ही नहीं है, आपने पहले से उन चीजों को अच्छे से पढ़ा ही नहीं है. दिस इज द रीजन आप वहां जाके कंटेंट राइटर बन जाते हो. सो अ बिग नो. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेगुलर टेस्ट देने पड़ेंगे, रिविजन्स करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी एग्जाम हॉल में जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा आपके हाथ अपने आप चलेंगे. अवॉइड एक्स्ट्रा राइटिंग. होता है ऐसा कि बच्चे, मैं पहले बताई कि 2 मार्क्स के चक्कर में जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें भर भर के लिखाते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज उनको पता होता है. तो एग्जामिनर को ये नहीं जानना कि आपको कितना पता है. आपको पता तो बहुत सारी चीजों के बारे में, सब लिख के आओगे क्या? नहीं ना. उतना लिखो जिससे आपको मार्क्स मिल जाए, बस उतना ही लिखो, कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं. Now the final thing is, आपने पूरी साल मेहनत की है, पूरे साल मेहनत की है एक दिन के लिए. That is the exam day. The exam day. Examiner आपको नहीं जानता है. Who is Adrika? Who is Ayush? Who is Khushi? Who is Harsh? एग्जामिनर को नहीं पता है. एग्जामिनर को बस एक चीज दिख रहा है, वो है आपका आंसर शीट. यानी योर आइडेंटिटी, योर पूरे साल का मेहनत इज ऑन दैट आंसर शीट. So make sure, make very, very, very sure that you are representing yourself. So represent yourself, present yourself properly. आपने अच्छे से पढ़ा है पर आपका presentation ही सही नहीं है. So that won't help dear. And yes, again, from my side,
everything I just said, what is about presentation and how can you just make it up, how can you switch things up, how can you make your answers presentable and can represent it beautifully in front of your teachers, in front of your examiners. So my part is over, and yeah, that's it. I really hope आपको सब कुछ समझ आया होगा, सब कुछ दिखा होगा. Just type quickly if you understood everything. Just help me up if you understood. Yeah? How was the session, guys? Just type. Wonderful. Okay. Okay, any other topic you want me to explain or you want me to take up? Because every Sunday we are going to take a few topics which, are helpful for the students. So I'll make sure to take a few topics up and just explain those. So there was my WhatsApp number, and you can connect with me on my WhatsApp. You can go on Facebook. There is my page called K Plus Knowledge Plus. On YouTube also you can find me up. Twitter, Instagram, anywhere you can find me up. You saw my WhatsApp number and everything. आपने जिससे भी link लिया है, you can ask my number from there also. You'll get it. You can just tell me on which topic should I make more videos or seminars or webinars, whatever you say that. So yeah, thank you each and every one of you for being there today. And yeah, bye. Just type bye because I'm also going bye. Bye, ma'am. Bye 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 bye. Bye.